Hello, welcome back to the channel, and in this video we are going to cover the prelims PYQs of Central and State Executive, a topic of polity. Let's get started. तो आपका पहला क्वेश्चन जो है it is about president. The first statement is कि if the election of President of India is declared void by the Supreme Court, all acts done by him or her in the performance of duties of the office of president before the date of decisions become invalid. So let's see क्या ये true है या false है. The statement is false because according to the article 71(2), even if the Supreme Court declares कि जो president का election था it was void, उस president ने जो काम किया होगा during the tenure of being a president, they remain valid. Then the second statement is election for the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. This is absolutely wrong. This statement is false. According to the article 62, आपका जो president का election है it must be completed before the expiry of the term. एक जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले यू कंडक्ट द इलेक्शन. इट डजेंट मैटर कि किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, इफ़ देयर इज़ अ हंग पार्लियामेंट इन सम लेजिस्लेटिव असेंबली और समथिंग, इट डज नॉट मैटर. एंड थर्ड, when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribe time limit he/she has to declare his or her assent. No, again absolutely wrong. According to Article 111, President can give his assent, withhold his assent, or return the bill if it's not a money bill, but there is no time limit according to the Constitution. That is why we say कि आपके इंडियन प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो है, that he can sit on the bill for as long as he wants without giving the assent because there is no time limit. तो आपके तीनों जो statements हैं they are wrong, so the right answer is D, none of the above. Then again a statement based question. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. This is absolutely right. According to Article 355, which is the basis of Article 356, which is the President Rule, emergency, it is the duty of the state to protect the state from internal disturbances. Then the second statement is the Constitution of India exempts the state from providing legal console to the person being held for preventive detention. अब इसके बारे में let's see it in a little deeper level. आपका जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22(1), it provides the right to any person who is arrested. उसके पास दो राइट रहते हैं कि एक तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, दूसरा आपके पास राइट रहता है कि आपको लीगल प्रैक्टिशनर जो है उससे कंसल्ट करवाया जाएगा एंड दैट प्रैक्टिशनर कैन डिफेंड यू. ओके, तो ये आपके आर्टिकल 22(1) के अंदर आता है. इट्स अ फंडामेंटल राइट, बट दिस राइट इज नॉट गिवन टू अ पर्सन हु इज़ अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ लाइक द एग्जेम्पशन है इसका, like it is not included in Article 22(1). So we can say that this statement is right. The Constitution doesn't prescribe कि आपको preventive detention वाले जो people हैं उनको भी आपको these two right you will have to provide. Then third statement is according to the POTA Act of 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ये आपका जो पोटा एक्ट है 2002 का, उसमें आपका एक प्रोविज़न है वेयर इफ़ यू मेक सम कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर जो कि एसपी रैंक है या फिर उसकी एसपी रैंक से अबव है, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एविडेंस. मतलब आपका यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम है. अगर आप किसी एसपी रैंक वाले या फिर एसपी रैंक से ऊपर वाले किसी व्यक्ति को कन्फेशन दे रहे हो
it would be considered as an evidence. तो आपके दो स्टेटमेंट सही हैं and one is wrong, so answer is only 2. Now let's see the third one. Consider the following statement in respect of election of President of India. Again a President question. First, the nominated members to either House of Parliament or legislative state assemblies are also eligible to be included in electoral college. अब आपका आर्टिकल 54 एंड 55 डिस्कस करता है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में. इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज वो लोग होते हैं जो मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. सिंस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज़ इनडायरेक्ट इन नेचर, इस इलेक्टोरल कॉलेज में आपके आते हैं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो कि इलेक्टेड हैं. ओके, सारे एमएलएज जो कि इलेक्टेड हैं. स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं वो आ जाते हैं, और दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड एमएलए भी आते हैं. ओके, ये जो है ये इंक्लूड किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में. एज यू कैन सी द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड. The nominated members are not included in the electoral college. So this statement is wrong. Then statement 2. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. अब इसके लिए थोड़ा सा we'll have to look into the formula. हर MLA की वोट की वैल्यू कैसे काउंट करी जाती है? The population of the state based on 1971 का सेंसस डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड MLA इंटू 1000. तो अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो देयर आर चांसेस कि आपके चांसेस नहीं, इट इज़ एविडेंट कि आपके वैल्यू वोट की वैल्यू बढ़ जाएगी. पर आपके वहाँ पे MLAs भी बढ़ जाएंगे ना, तो MLAs भी अगर ज़्यादा हैं तो आपके वैल्यू पर MLA घट जाता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन स्टेट, उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन द MLAs power is more, the value of MLA's vote is more, but since population is more there will be more MLAs too. Okay, तो फिर यहाँ पे MLA भी ज़्यादा होंगे. Now the power will decrease as compared to the states which has less MLAs. Okay, so this statement is wrong. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. Well, this is true. And अगर आपने ये दिया होता 2023 में, I don't know how people guessed it. It is just such a random thing. But Puducherry की आपके MLA 16 है and अरुणाचल के 8 हैं. It was a weird question all in all. सो यहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट गलत हैं, सिर्फ 1 स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 1. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज द मिनिस्टर इन 4 रैंक्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो क्लासिफिकेशन. ये जो क्लासिफिकेशन है ये कन्वेंशन बेस्ड है. ओके, आर्टिकल 74 और 75 बस ये कहते हैं कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड रहेगा आपका PM. बस इतना जिक्र है, उससे ज़्यादा कुछ भी आपका क्लासिफिकेशन नहीं है. देन सेकंड है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा. दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. ये आपका 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था. बेस्ड ऑन दिस अमेंडमेंट एक्ट आपका लिमिट कर दिया गया था. किस चीज़ को लिमिट कर दिया गया था? आपका मिनिस्टर्स को, टू प्रिवेंट जंबो कैबिनेट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैबिनेट में बहुत सारे मेंबर्स हैं. सो एज ऑफ नाउ देयर कांट बी मिनिस्टर्स एक्सीडिंग 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन लोकसभा. So the right answer is only 2. Next, consider the following statement. First, Attorney General of India and Solicitor General of India are only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India. And second is, according to the Constitution of India, the Attorney General
of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. तो अब देखो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. लेट्स सी कि ये गलत क्यों है. आर्टिकल 88 कहता है कि आपका जो अटॉर्नी जनरल है ना, ही कैन स्पीक इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग. वो प्रोसीडिंग जो चल रही है वहाँ पे अटॉर्नी जनरल जा सकते हैं, बट ही कैन नॉट और ही और शी कैन नॉट वोट. वोटिंग राइट्स नहीं है अटॉर्नी जनरल के पास. बट सॉलिसिटर जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मैंशनिंग नहीं है. कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन सॉलिसिटर जनरल के राइट्स को मेंशन नहीं करता है. अब क्यों नहीं करता है? बिकॉज सॉलिसिटर जनरल जो है ना, इट्स अ स्टैट्यूटरी और या फिर कन्वेंशनल पोस्ट है. इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. देन अकॉर्डिंग ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि आपका जब भी गवर्नमेंट रिज़ाइन कर रही है, जो अपॉइंट कर रही है अटॉर्नी जनरल को, देन द अटॉर्नी जनरल ऑल्सो रिज़ाइंस, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 विच टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल, आपका एजी जो रहता है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दैट पर्सन होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि उसका कितना फिक्स्ड टेन्योर है. कॉन्स्टिट्यूशन डजंट से दैट पर्सन मस्ट रिज़ाइन व्हेन द गवर्नमेंट रिज़ाइंस. बट यू शुड ऑल्सो नो कि बाय कन्वेंशन हमेशा आपके जो अटॉर्नी जनरल बनते रहे हैं, दे रिज़ाइन व्हेन द गवर्नमेंट रिज़ाइंस. सो द राइट आंसर इज नाइदर 1 and 2 बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. Then N. Gopalan Swamy Iyengar's committee suggested that the minister and secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. And second is, in 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reform Commission 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. Now let's see it. अगेन इट्स अ क्वेश्चन जो आप रैंडम गैस नहीं कर सकते हो. यू मस्ट नो इट और आइदर यू डोंट नो इट. तो आपकी एन गोपालन स्वामी अय्यरगर जो कमेटी थी, इट रिकमेंडेड कि आपकी मिनिस्ट्री की ग्रुपिंग होनी चाहिए सो दैट देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ पर्सनल की जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए. सो फॉर दिस दे रिकमेंडेड ग्रुपिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज. देयर वॉज नो मैंशन कि देयर शुड बी सेक्रेटरी डेजिग्नेट होना चाहिए जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो पाए. देयर वॉज नथिंग मैंशन लाइक दिस. देन दिस स्टेटमेंट इज़ राइट. सेकेंड स्टेटमेंट कि 1970 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया था, है ना, और ये रिकमेंडेशन पे बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की. ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया था, यही आपका आगे चल के बना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म DPR, और फिर यही DPAR आगे चल के DOPT बन गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. सो द राइट आंसर इज B2 ओनली. नाउ लेट्स सी द सेवेंथ क्वेश्चन. At the national level, which ministry is the model agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers? Recognition of Forest Right Act 2006. Now this act is really important from the perspective of environment and geography, so do look into it. And the right answer is Ministry of Tribal Affairs. वन कैन थिंक कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो सकता है, बट दिस एक्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड, वॉज नॉट गिवन टू दिस मिनिस्ट्री बिकॉज हिस्टोरिकली यू सी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द ट्राइबल डे, क्योंकि ये फॉरेस्ट के लोगों के लिए और फॉरेस्ट के लिए बनाया गया था ये एक्ट. इट वॉज थॉट दैट इट वुड बी बेटर इफ the people themselves take care of it. That's why they did not want कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक वॉर शुरू हो जाए या फिर ब्यूरोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, जो कि होती आई है. Now let's see the 8th. Consider the following statement. The President of India can summon a session of the Parliament at such place at he or she thinks fit. This is directly from the Constitution. Article 85(1).
Then second, the Constitution of India provides for 3 sessions of Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन ही नहीं है करा गया है 3 सेशन के बारे में. ये 3 सेशन होते हैं बजट, मॉनसून एंड विंटर. ये कन्वेंशन के बेसिस पे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेंशन किया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज कि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए आपके पार्लियामेंट की मीटिंग के बीच में. ओके, there is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. It is also true, as I have said कि यही mention है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. There is no mentioning of any minimum days. So 1 and 3 is right. Now let's see. With the reference to the Legislative Assembly of State in India, consider the following. With reference to the Legislative Assembly of State in India, consider the following statement. One is the governor makes a customary address to the member of a state legislature at the commencement of first session of the year. Now, I have told you in the previous video also, अगर आप कुछ भूल जाते हो कि legislative assembly में कैसे चल रहा है, just remember about the parliament. And we know in parliament the president do give a customary address at the start of the first session of each year and after each journal year. It's the same with governor too. According to 176 आर्टिकल, गवर्नर भी आपका पहले जनरल इलेक्शन के बाद एक एड्रेस देता है और फिर फर्स्ट ईयर का जो न्यू ईयर का जो फर्स्ट सेशन रहता है वहाँ पे भी देता है. देन सेकेंड, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर. अब देखो ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अपने लिए खुद रूल बना सकता है अंडर आर्टिकल 208, बट एट टाइम्स इफ दे डोंट हैव एनी रूल दे डू फॉलो लोकसभा के जर्नल रूल्स एंड मैटर. तो दिस इज़ ऑल्सो राइट. एज यू कैन सी बहुत सारे आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी आपको पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में एंड स्टेट लेजिस्लेचर के ट्रेडिशन में. तो बोथ आर ट्रू. नाउ लेट्स सी. Consider the following statement. There are a hell lot of statement based question in this section. No criminal proceeding shall be instituted against the governor of a state in any court against his term of office. This is true. This is true for president also. कि आपका जब वो ऑफिस में हैं देयर कैन नॉट बी एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग. दे कांट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड बोथ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 सेकेंड. The emoluments and allowance of the governor of the state shall not be diminished during his term or office. This is also true. ये क्यों किया जाता है? To ensure the independence and dignity of the office. यही सेम प्रिंसिपल आपको मिलेगा जजेस में, CAG में एंड प्रेसिडेंट में. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 1. The chief secretary of state is appointed by governor of the state. No, he is appointed by the state government. That is the chief minister. चीफ मिनिस्टर होता है जो अपॉइंट करता है, नॉट द गवर्नर. रियल अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो रहती है वो COM के पास रहती है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास. देन द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ अ फिक्स टेन्योर. ये तो मतलब आई थिंक वन शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट. वी हैव ऑल हर्ड ऑफ स्टोरीज जहाँ पे एक IAS है हु हैज़ बिकम अ चीफ सेक्रेटरी, देन दे लेटर गेट ट्रांसफर्ड. सो इट्स नॉट अ फिक्स टेन्योर. दे कैन get transferred, they can be suspended. They serve during the pleasure of state government, that is the chief minister and the council of minister, and can be transferred and replaced. So both of the statements are false. Then 12th, the executive power of the Union of India is vested in PM. No, it's vested in the president according to article 53. Then second, the PM is the ex officio chairman of Civil Services Board. Again, it's wrong. The cabinet secretary is the ex officio chairman of the Civil Services Board, not the PM. So again, neither 1 and 2. Then 13th, which of the following are the functions of cabinet secretary? कैबिनेट सेक्रेटरी के फंक्शन होते हैं कैबिनेट को असिस्ट करना, कैबिनेट कमिटीज़ को असिस्ट करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना मिनिस्ट्रीज़ के बीच में,
एजेंडा को प्रिपेयर करना और डिसीजंस को रिकॉर्ड करना, अलॉन्ग विद दैट इम्प्लीमेंटेशन, जो डिसीजन बनाए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, ये सारे होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के responsibilities and functions. So the first option is preparation of agenda for cabinet meeting. It is true, we have seen this preparation of agenda. Then secretariat assistance to the cabinet committees, again it is true. And then allocation of financial resources to the ministry, this is wrong, this is done by Ministry of Finances, है ना. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बजट डिवीजन मेंटेन करता है कि किस मिनिस्ट्री को कितना फाइनेंशियल अलोकेशन होना है. सो ओनली द 1 and 2 आर राइट. देन 14th, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द more convenient transaction of the business of government of India. This is true according to article 77(3). And second, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of PM. Again it's wrong because सारे executive action जो हैं, executive head ही अगर president है तो जितने भी executive actions हैं it will also be taken in the name of president. अब यहाँ पे एक और आता है डी ज्यूरे एंड डिफेक्टो. इफ़ पीपल डोंट नो, डी ज्यूरे होता है कि बाय लॉ आपका डी ज्यूरे कौन है, प्रेसिडेंट है, द हेड इज प्रेसिडेंट, बट द डिफेक्टो हेड इज पीएम. मतलब द फैक्ट व्हाट इज़ द रियलिटी, लॉ और रियलिटी में डिफरेंस आ सकता है. सो दैट्स वाई देयर इज डी ज्यूरे एंड डिफेक्टो. सो द राइट आंसर इज 1 ओनली. 15th, which of the following are discretionary power given to the governor of the state. मतलब discretionary power वो power जो गवर्नर अपने खुद के विल पर ले सकता है. Sending a report to the president of India for imposing president rule. This is true. president rule जो है 356, ये इसका बेसिस या फिर तो गवर्नर की रिपोर्ट हो सकती है या फिर अदरवाइज भी हो सकता है. सो गवर्नर ये जो रिपोर्ट है वो खुद की डिस्क्रिशन पे भेजता है. देन सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, इट्स रॉन्ग. अगेन आप पार्लियामेंट में भी देखो, द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द PM. इट इज़ द सेम इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो. आपका जो गवर्नर है ही अपॉइंट्स द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द CM. ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. अब आपका आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर के पास ऑप्शंस रहते हैं 4 जब उसके पास कोई से भी बिल आता है. आइदर ही कैन से येस टू द बिल, और ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट, या फिर वो रिटर्न कर सकता है, या फिर ही कैन रिजर्व. दिस इज़ अ पावर जो गवर्नर के पास है. ही कैन रिजर्व सम बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. यहाँ पे कुछ ऐसे भी बिल्स रहते हैं जिनके लिए रिजर्वेशन मैंडेटरी रहता है कि करना ही करना है, एंड दिस इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर. ये जो आपका दिस पावर ये जो है ना, ये गवर्नर खुद डिसाइड करता है इफ़ ही वांट्स टू reserve certain bills or not. Then fourth, making rule to conduct the business of state government. No, that's again wrong. He can just give aid and he can give advices. Okay, he can't just make the rules out of his own discretion. So the answer is 1 and 3. Now 16th, with reference to the union government, consider the following statement. First, the Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily a sitting member of Lok Sabha. ये तो गलत ही है यार. अभी अपन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, he is from राज्यसभा ओनली, सो इट्स नॉट ट्रू. आर्टिकल 75(5) यही कहता है कि मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस. कोई से भी हाउस का चलेगा. एंड ही कैन ऑल्सो बी नॉट अ मेंबर, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑल्सो. बट उसका यही है कि विद इन 6 months ही शुड बी अ मेंबर. लाइक अगर कोई व्यक्ति है जो अभी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ही कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर, बट दैट पर्सन हैज़ टू बिकम अ मेंबर विद इन 6 months. सो दिस इज़ रॉन्ग. द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. दिस इज़ रॉन्ग. कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है ना, इट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द PM एंड इट इज़ हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, जो बहुत IAS जो रहते हैं, द सीनियर मोस्ट IAS.
और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का भी देख लेते हैं कि क्या काम रहता है। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैंडल द कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड शेड्यूलिंग। ये चीज़ें करती है, शेड्यूल देखती है कि गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखते हैं। ओके, नाउ द 17th, टू whom does the president of India address his resignation? The right answer is vice president. अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो CJI को दिया जाता है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Consider the following statement. A. The Advocate General of State in India is appointed by President of India on the recommendation of the Governor of the concerned state. And the second is, as provided in the Civil Procedure Code, High Courts have original, appellate and advisory jurisdiction at the state level. पहली बात तो आपके एडवोकेट जनरल है ना, ही इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट का यहाँ पे कुछ रोल नहीं रहता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। ओके, एंड देन वन मोर थिंग वी शुड रिमेंबर कि एडवोकेट जनरल की एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि ही मस्ट बी qualified to be appointed as the high court judge. It's just little knowledge about advocate general. So यहाँ पे आपका रोल रहता है सिर्फ गवर्नर का, not the role of president. Then as provided in civil procedure code, high court के पास, now one must remember कि high court के पास original appellate jurisdiction तो है, but the high court does not have advisory jurisdiction. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 आपकी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट डज नॉट हैव एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। नाउ 19th क्वेश्चन यूनियन गवर्नमेंट के कंसिडर में है कि फर्स्ट इज द मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। नो, कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा 77(3) आर्टिकल के अनुसार मिनिस्ट्री का अबॉलिशन और क्रिएशन प्रेसिडेंट के नाम पे होता है और इसको एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो रियल जो आपका डिसीजन है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं हेडेड बाय द PM, एंड जो लीगली जो जिसके नेम पे होता है इट्स द प्रेसिडेंट। Then each of the minister is assigned to the ministry by President of India on the advice of PM. This is true. According to Article 77 and 74, जो आपको पोर्टफोलियो अलोकेशन होता है मिनिस्ट्रीज़ का, ये प्रेसिडेंट के नाम पर ही करा जाएगा, पर यहाँ पे एडवाइस लगेगी PM की। So 2 only is the right answer. As per the protocol, who among the following rank highest in the order of precedence? तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले आप कहेंगे प्रेसिडेंट, देन फिर वाइस प्रेसिडेंट, देन PM, देन गवर्नर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, डेप्यूटी PM, CJI एंड स्पीकर। तो आप इस के बेसिस पे देख सकते हैं दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन हिज स्टेट इज़ द हाइएस्ट इन दिस गिवन ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। ऑफ कोर्स ही इज़ डिफरेंट, क्योंकि आपका जो किंग है ही इज़ मोनार्क एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मोनार्क। देन द रीज़न इज़ गिवन, ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। नाउ इट इज़ रॉन्ग। आपका अमेरिका में प्रेसिडेंट इज़ द रियल हेड, बट इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज़ नॉट द रियल हेड। सो the assertion is true, the reason is false. The right answer is C. Now consider the following statement about the Attorney General of India. He is appointed by President of India. True. ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। According to Article 76, AGI is appointed by President and he must have the same qualification as the Supreme Court judge. And यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या राइट्स हैं आपके अटॉर्नी जनरल के। ये आपके डिस्कस करे गए हैं 88 में, आर्टिकल 88 में, दैट ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, ही हैज़ नो वोटिंग राइट एंड मेंबरशिप मैंडेटरी नहीं होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अटॉर्नी जनरल हैज़ टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देन he must have the same qualification as required for the judge of Supreme Court. We have discussed this.
ये 76 में हो ही गया है, so this is also true. थर्ड, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 88 के according to the article 88 he need not to be a member of parliament to participate in the proceedings of parliament. And fourth, he can be removed by impeachment of the parliament. Now this statement is wrong. Okay, no, like third भी wrong है, fourth भी wrong है, that he cannot be impeached. जो impeachment का process है, okay, it is for president, judges and CAG के लिए ये आपके आपका जो AGI है, he can be removed by president. He holds the office during the pleasure of president. So the right answer is 1 and 2. Then 23, consider the following functionaries: cabinet secretary, chief election commissioner, union cabinet minister and chief justice of India. यहाँ पे उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में करना है. एंड यू कैन सी सबसे पहले आपके आते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स. आप हेड ऑफ द स्टेट्स को सबसे पहले रखेंगे, फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स को आप रखेंगे. ओके, जब भी आप प्रेसिडेंट्स का आएंगे तो वन कैन लुक इट इन दिस वे. देन आप फॉर्मर हेड्स को रख सकते हैं. देन यू कैन पुट टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जैसे CJI स्पीकर. देन यू विल पुट कैबिनेट मिनिस्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फॉलोइंग दैट मिनिस्टर्स, एंड देन सीनियर ब्यूरोक्रेसी. सो बेस्ड ऑन दिस द राइट आंसर कैन बी, फर्स्ट आएगा आपका CJI, देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, फिर आपके आएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन फिर कैबिनेट सेक्रेटरी. तो द राइट ऑर्डर इज 4, 3, 2, 1. देन इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना, ये सिर्फ लोकसभा में ही मूव करा जा सकता है. एंड सिंस इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज he belongs to the upper house, he cannot vote in Lok Sabha na, so he can just attend and speak. He cannot vote in a non-confidence motion if he is not part of Lok Sabha. Then he will not be able to speak in the budget in the lower house. No, he can actually speak. According to article 88, कोई भी minister, if he belongs to Lok Sabha or Rajya Sabha, he or she can speak in either houses. He or she can participate in the proceeding, but they can only vote in the house they are member of. Okay, so according to article 88, ministers can attend either of the house proceedings. Then he can make a statement only in the upper house. अब ये तो 88 के contradictory है, तो this is also wrong. Then fourth, he will have to become a member of lower house within 6 months after being sworn in as the prime minister. This is wrong, and one must remember कि Mrs. Indira Gandhi she belonged to the Rajya Sabha only, and according to article 75(5) जो minister हैं, they can be member of any houses. They need not to be member of Lok Sabha only. This has been discussed previously also in the same video. Now 25th, which one of the following statements is correct about Prime Minister of India? A, he is free to choose his ministries only among those who are member of either house of parliament. No, he can also choose a non-member, but that person has to become a member within 6 months. ये है article 75, already discussed. This is a repeating theme. Then he can choose his cabinet colleagues after due counseling by the president of India. It's the vice versa. आपका president act करता है on the aid and advice of COM, not the opposite way. So this is wrong. He has a full discretion in the choice of person who are to serve as ministers in the cabinet. This is true. This is the right answer. And he has only limited powers in the choice of his cabinet colleagues because of discretionary power vested in president of India. Very less discretionary power in president, almost no discretionary power. Then 26, which of the following is a part of electoral college of president but not a process of impeachment? देखो, लोकसभा वाले तो इलेक्शन में भी है, इम्पीचमेंट में भी है. राज्यसभा वाले इलेक्शन में भी है, इम्पीचमेंट भी है.
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किसी में भी नहीं है, ना तो इलेक्शन में है ना ही इम्पीचमेंट में है, ओके। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये जो हैं ये आपके इलेक्शन में है, बट दे आर नॉट इन इम्पीचमेंट. सो द राइट आंसर इज state legislative assemblies, because they are part of electoral college but not the part of impeachment. Then 27, which of the following is not explicitly stated in the Constitution of India but followed as a convention? The finance minister is the member of lower house. This is wrong. मनमोहन सिंह जी जो थे, he was a finance minister from Rajya Sabha. Then B, the prime minister has to resign if he loses the majority of the lower house. This is true. आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, बट देयर इज़ नो मैंशनिंग ऑफ के प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना है. इट्स जस्ट कन्वेंशन, और ये एक्सप्लिसिट मैंशनिंग नहीं है. ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रॉन्ग. एंड fourth is in the event of both the president and the vice president demitting office simultaneously before the end of the tenure, the speaker of lower house of the parliament will officiate as the president. It is wrong. पहले आपके रहते हैं president. In case president has to vacate the seat, then आपको vice president will serve as the president, and in case he or she also has to vacate the seat, then आपके CJI रहते हैं, Chief Justice of India. Then 28, Article 156 of Constitution of India provides that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deducted from this? First, no governor can be removed from the office till the completion of his term. ये तो गलत है. अ गवर्नर कैन बी रिमूव्ड, ओके. अगर उनका 5 साल नहीं भी हुआ है देन ऑल्सो ही कैन बी रिमूव. एंड सेकेंड, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपिरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 5 years. ही और शी कैन कंटिन्यू जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता है, ओके. नाउ वन मोर थिंग, ये जो चीज़ है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस टिल द कॉम्प्लीटेशन ऑफ हिज और हर टर्म. दिस वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ पुच्ची कमीशन. पुच्ची कमीशन ने कहा था कि आपको ऐसा करना चाहिए कि गवर्नर को उनके कंप्लीटेशन के पहले ना हटाओ, बट ये अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सो दिस इज़ रॉन्ग, ओके. सो नाइदर 1 and 2 इज़ द राइट आंसर. Then question 29, which among the following is are appointed by President of India? Chairman of Finance Commission 2008. According to Article 280, the Chairman of Finance Commission is appointed by President. Vice Chairman of Planning Commission, ये तो सोचो ही मत इसके बारे में, there is no more Planning Commission. And Chief Ministers of Union Territories, this is also wrong. CM जो हैं वो दिल्ली और पौंडीचेरी के ही होते हैं, and they are appointed by Lieutenant General. देखो यूटी जो रहता है ना, ये आता प्रेसिडेंट में है, बट प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर इट थ्रू लेफ्टिनेंट जनरल. तो ये जो आपका अपॉइंटमेंट होता है सीएम का, इट इज़ डन बाय लेफ्टिनेंट जनरल ओनली. Then the Chief Minister of State in India is not eligible to vote in president election if he is a candidate. No, it's not true. If he is yet to prove his majority on the floor of lower house of state legislature. C, he is a member of upper house of state legislature. ये we have seen this just 2 or 3 questions से पहले, that ये जो upper house है ना, ये तो पार्टी नहीं लेता है. So if a chief minister is from the upper house, of course he cannot take part in the electoral college of president election. Then he is a member of lower house of the state legislature. All of these are wrong. The right answer is he is a member of upper house of state legislature. 31st question and the last question is the only instant when the President of India exercises his power to veto is related to the Indian Post Office Amendment Bill. 1986 में प्रेसिडेंट जेल सिंह जो थे उनने वीटो का यूज़ किया था, बिकॉज दिस बिल इंटेंडेड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस. सो दैट्स इट. वी हैव completed the 30 questions, 30 PYQs on central and state executives. I hope you like it. Please like, share, subscribe, comment whatever
advice you want to give, if you think I am doing something wrong, or if you want to appreciate if I'm doing something right. Thanks a lot. Bye.